हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो दो एविडेंस जो है वो डिस्कस किए थे। ये वीडियो में हमने रिमेनिंग जो एविडेंस है वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बिफोर द स्टार्ट द वीडियो, फर्स्ट आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मैं उसे आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर begins the point, first we will discuss these two questions that is given in the page number 4, that which are the different organs in the body of organism. That we know very well, students. Higher organisms show the different body organs. So each system consists of the definite organ, such as the thoracic cavity. There are the lungs and heart. In the skull, brain is located, etc. So the next question, in each of the organs useful to the organism. So each organ is very important and they perform the specific functions which is necessary for the survival, such as the brain control and the coordinates all the activities, and heart is responsible for the circulation, lungs is perform the respiration, kidney perform the filtration work, filter out the nitrogenous waste product from the blood, etc. like that only. So now we will discuss, that is the next evidence, vestigial organs. Vestigial organs means exactly the short meaning, that is a no function organs, no function, functionless organs, but then also that like that organs present in the human body. So let's start. Degenerate or underdeveloped useless organ or organism of the organism are called the vestigial organs. Just now only I told that vestigial organ means the functionless organs. With degenerate and underdeveloped useless organs, that is means the vestigial organs. In the living organism, sudden development of the new tissues or organs for living in the changing environment is not responsible. Instead of existing organs undergoes the gradual changes. It means the degenerate or underdeveloped organs which cannot perform any function are known as the vestigial organs. Existing organs undergo the gradual changes during the evolutionary process. Thus, they perform the new tissues, organ, etc. Under certain environmental conditions, such changes are necessary, and however the some structure become useless and newly changed condition, such as the some organs we will discuss here. That is the such organs seen in the different phases, disappearance in the different animals, such organs through the non-functional in certain organisms. It may be functional in other organisms, that is not a vestigial in the other organism, but there is a no function in that particular organism, that is a vestigial organs. Such as appendix, which is useless. Appendix, that organ is present in the human body, but that is a useless, no function in the human body, but it is a useful for the other organism. Okay, the similarities means exactly appendix का function क्या है? Digest cellulose को digest करना. Function क्या है appendix का? Cellulose को digest करना, means those eat leaf and uncooked food. Okay, in that body that organ is useful, but in the human being no use in the human being body, but that organ is present in our body because of our ancestor. They eat like that food, that is why that organ is present in the body. So the next similarities, muscles of the ear pinna, which are the useless of the human, are useless to the human but are useful in the monkeys. Means ear pinna, that is the ear muscles, that is useless for human but useful for the monkey for the movement of ear pinna. Okay, and the next tailbone also, that is also present in the body because of our ancestor. The next one more example is here, wisdom teeth. So this is the vestigial organs, that is means we are belonging to the same origin.
ओके। सो द नेक्स्ट, अगर आप नेक्स्ट पिक्चर्स देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो है रिमेनेंट्स जो है वो हम देख रहे हैं, इम्प्रेशंस देख रहे हैं। दैट मीन्स द फॉसिल्स, हम फॉसिल्स बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट एविडेंस जो है हमारा इसी के ऊपर डिपेंड है, दैट इज़ अ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। द वर्ड कम फ्रॉम पैलेंटोलॉजी एंड इट मीन्स द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। सो हमारे माइंड में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम कैसे बने हैं, कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुआ है, कितने ईयर्स एगो हम, मीन्स ये जो भी कोई भी फॉसिल्स है वो कितने ईयर्स एगो होंगे। सो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे माइंड में आते ही रहते हैं। एग्जैक्टली मीन्स फॉसिल्स आर द रिमेनेंट्स एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर इम्प्रेशन विच आर द प्रिजर्व डीप डाउन इन द अर्थ सर्फेस। ओके, द वेरियस नेचुरल क्लाइमेटिक्स buried the organisms. In this way, the fossils throw light on the evolutionary process as they offer direct evidence of the that is the evidence of the evolution. So means the large number of organisms get buried due to the disaster. The some disaster like that is a earthquake हो गया, volcano eruption हो गया, जो उसके बेसिस पे कुछ जो रिमेनेंट्स हैं, जो इम्प्रेशंस हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के, वो प्रिजर्व रहते हैं एज इट इज़ अंडरग्राउंड, एंड दीज आर कॉल्ड द फॉसिल्स। एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। ओके, सो इसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर मेथड रहती है कि पर्टिकुलरली जो लेयर है उसका ईयर जो है उसका एज फाइंड आउट करने के लिए, वो मेथड को हम बोलेंगे कार्बन डेटिंग मेथड। मीन्स इसी के बेसिस पे ही मीन्स इवेंट हुआ है कि दैट एज अ लास्ट लेयर इज इनवर्टिब्रेट, फॉर दैट द रिकग्नाइज विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कार्बन डेटिंग। अगर आप ये डिस्कस देखोगे ये पेज नंबर 6 पे, तो कार्बन डेटिंग दिए वाला है यहाँ पे। कार्बन डेटिंग मीन्स इसमें जो है वो दो आइसोटोप्स, कार्बन के दो आइसोटोप्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज़ द C12 एंड C14। सो कार्बन डेटिंग इज़ अ टेक्निक टू अंडरस्टैंड द एज ऑफ फॉसिल्स। एग्जैक्टली कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि हमें जो भी फॉसिल्स की एज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Okay, and when the alive animals and the plant consume carbon continuously, but this process and after the death, the latter their body carbon is in the form of C14 undergoes conditions and decaying process. मीन्स C14 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, जो ओन डिकम्पोज होता है इन 20 मिनट एंड हाफ लाइफ दैट जो भी है, और C14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, जो वो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है। ओके, सो ये कार्बन के जो आइसोटोप्स यूज़ करके, ये कार्बन डेटिंग जो है वो ये मेथड यूज़ करके हम फॉसिल्स का एज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द पर्टिकुलरली जो 3 स्टेप्स है उसके बेसिस पे है जो हम एज फाइंड आउट कर सकते हैं। द टाइम पास सिंस द डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, मेजरमेंट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 एंड द रेशियो ऑफ C14 एंड C12 द प्रेजेंट इन द बॉडी। द एग्जैक्टली यूजेस क्या है फिर कार्बन डेटिंग के? द स्टडी ऑफ पैलेंटोलॉजी, अंडरस्टैंड द ऑर्थोलॉजी एंड डिटर्मिनेटिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड एक स्क्रिप्ट calculating the age of fossils and placing them in that geological particular places time पे basis। so ये हो गया हमारा कार्बन डेटिंग जो हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में यूज़ करते हैं कि पर्टिकुलर फॉसिल्स का एज क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए। सो इसी के बेसिस पे जो है फर्स्ट इवेंट हो गया, फर्स्ट लेयर हो गया कि इन्वर्टिब्रेट्स जो फाउंड हो गए, उससे बेसिस पे तो फर्दर जो है वो डेवलपमेंट हुए वाली है। फिर उसमें पाइसेस पीसेस जो हो गया वो, फिर रेप्टाइल्स एम्फीबिया, देन रेप्टाइल्स हायर रेप्टाइल्स जो भी है, देन मैमल्स एंड देन एप्स जो है वो ऐसा डे बाय डे उसका जो है वो प्रोसेस हुए वाला है, इवोल्यूशन हुए वाला है। ओके, सो द नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक। ओके, कनेक्टिंग लिंक मीन्स एग्जैक्टली दैट इज द सम ऑर्गन शेयर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू ग्रुप्स एंड हेंस दे आर कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक्स। अगर यहाँ पे बहुत सारे 2-3 एग्जाम्पल्स दिए वाले हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। अगर आप पेरीबेटस ये जो एग्जाम्पल देखेंगे तो इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिडा एंड अर्थोपोडा, दस इट इज द कनेक्टिंग बिटवीन दिस 2 groups, 2 phyla,
एनिलिडा अगर हम देखेंगे तो उसमें सिगमेंटेड बॉडी है, क्यूटिकल्स है, देन उसमें जो पैरापोडिया लाइक जो ऑर्गन्स है फॉर द मूवमेंट वो प्रेजेंट है। ऑर्थोपोडा दैट इज अ ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ये जो है उसमें जो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सम ऑर्गेनिजम्स शेयर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स in the two groups and that is the connecting links। सो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, डकबिल दिया है, लंगफिश दिया है, बहुत सारे 2-4 एग्जांपल्स दिए वाले हैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट बुक में। जो एग्जैक्टली हम बोलेंगे कि सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन 2 different groups, hence they are called the connecting links। सो दीज एनिमल्स शो दैट मैंने अभी डिस्कस किया है कि कुछ जो हो गया, अगर सपोज रेस्पिरेशन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, so that is due to the presence of some that reptiles and birds show the relation between mammals and due to the presence of mammary glands and the hairs, the lungs fish perform the respiration with the lungs and irrespective of the being fish, and these examples indicate that the mammals are evolved from the reptiles and amphibians from the फिशेस। ये जो है वो डिस्कस है। नेक्स्ट एविडेंस जो है वो हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अगर यहाँ पे बहुत सारे जो देखो आप एम्ब्रियोज दिए वाले हैं, 3 स्टेजेस दिए वाले हैं, जो केयरफुली अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के एम्ब्रियोज दिए वाले हैं। फिश का है, टॉर्टोइज है, पिग है, काउ है, मैन एक्सेट्रा। 3 स्टेजेस दिए वाले हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस इसके बेसिस पे हम एक ही बोल सकते हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेज देखोगे, इनिशियल स्टेज, द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स गिवन इन द पिक्चर and all the embryos shows extreme similarities during the initial stage। यहाँ पे अगर फर्स्ट स्टेज देखोगे आप, सभी एनिमल्स के एम्ब्रियो जो है वो इनिशियल स्टेज में पूरे के पूरे टोटल सिमिलैरिटीज जो है वो दिख रही है। ओके, एंड द सिमिलैरिटीज एंड द डे बाय डे दोज सिमिलैरिटीज डिक्रीजेस ग्रेजुअली। मीन्स सिमिलैरिटीज इन द इनिशियल स्टेज, इट मीन्स दैट इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दिस एनिमल्स। इज इट means that all the vertebrates embryo shows extreme similarities during the initial stage of development, and these similarities disappear gradually in later development, and it means there may be the common origin of the all this organism। ये एक evidence है। तो हमने 6 जो है evidence है जो हमने डिस्कस किए हैं। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो डार्विन्स ने जो है बहुत सारे एनिमल्स पे उन्होंने सर्च किया था। हैज़ दैट 1809 और 1882 के बीच में प्रपोज थ्योरी की, दैट इज़ अ नेचुरल सिलेक्शन। दिस थ्योरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट द माइलस्टोन इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। अब एग्जैक्टली ये थ्योरी में क्या है, नेचुरल उन्होंने ऐसा बोला है कि जो एनिमल एक्टिव है, पर्टिकुलरली जो सराउंडिंग है या एनवायरनमेंट है, ये जो भी कंडीशन है उसको कंडीशन अप्लाई करके, कंडीशन को परफॉर्म करके, ये करके वो सरवाइव करता है और फिट रहता है, वही जो है वो एनिमल्स नेक्स्ट में जो है वो मीन्स हम डिस्कस करेंगे। चलो, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, that is the organisms which are fit for the survival and evolve while those are the not, that means the fish। दो सर्वाइव करता है, ये कंडीशन को ये करता है, वही फिट रहता है, वही नेक्स्ट इसमें उसका इवॉल्व होता है, और जो फिट नहीं है, जो सर्वाइव नहीं कर सकता है, वो पेरिश हो गया, मीन्स वैनिश हो गया, रिमूव हो गया। ओके, एंड द नेचुरल सिलेक्शन दस एक्ट्स टू द प्रोड्यूस न्यू स्पेसिस। The theory of natural selection is given in the book that is the origin of species। तो उन्होंने जो ये एक टाइटल दिया है, बुक को टाइटल ही दिया है, डार्विन had the published book title that is origin of species while explaining the concept, and Darwin says that all the organisms reproduce that is proficiently and all the organisms compete with each other। जो भी हमारे यहाँ पे भी बहुत सारा भी कंपटीशन है, means all the organisms compete with each other life threatening manner। in this competition only those organisms sustain which show the modification essential for the winning the competition। कुछ जो है वो जो सर्वाइव करता है, जो आगे जा सकता है, जो
कंपटीशन जीतने के लिए कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो दिखाता है. However, the beside this natural selection also the play important role because the nature select only those organism which are fit. नेचर भी क्या करता है, जो ऑर्गेनिज्म फिट है, हर कंडीशन में खुद को डेवलप करता है, उसी को सेलेक्ट करता है. एंड लाइक ऑल द रेस्ट पेरिश एंड सस्टेनिंग दैट सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एंड देयर बाय गिव राइज टू द न्यू स्पेसीज एंड देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. सो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल गिव्स राइज टू द न्यू स्पेसीज कैरेक्टर्स एंड डार्विन थ्योरी द नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड. बट इसमें भी बहुत सारे जो ऑब्जेक्शन लिए हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक कोई नेचुरल सिलेक्शन है वो नॉट ओनली द फैक्टर ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन. दूसरा भी है ऑब्जेक्शंस, डार्विन्स डिड नॉट मेंशन द एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशंस. देयर इज़ द नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द सम चेंजेस ऑफ इन दैट. ऐसे बहुत सारे जो ऑब्जेक्शंस भी है. ये जो ओवरऑल था डार्विन्स थ्योरी. डार्विन्स जो है वो साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट है, वो प्रपोज उसने इवोल्यूशन थ्योरी की है. डार्विन्स एंड डार्विनिज्म ISM जो कोई भी साइंटिस्ट के पीछे जो ISM लगता है उसने पर्टिकुलरली जो थ्योरी इवॉल्व किया है उसी को बोलते हैं डार्विनिज्म. ओके, डार्विनिज्म मीन्स डार्विन द थ्योरी एंड पोस्टुलेट. ISM का मीनिंग बोल रही मैं आपको, थ्योरी एंड पोस्टुलेट विच वॉज गिवन बाय डार्विन, उसी को बोलते हैं डार्विनिज्म. अब नेक्स्ट हम देखेंगे लैमार्कनिज्म. लैमार्कनिज्म मीन्स जो लैमार्क ने थ्योरी और पोस्टुलेट जो गिवन किए हैं विच वॉज गिवन बाय द लैमार्क, दैट इज द लैमार्कनिज्म. मीन्स ये जो नेम के आगे ISM लग रहा है, दैट इज मीन्स ISM मीन्स क्या है, जो वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने थ्योरी और पोस्टुलेट्स दिए हैं उसी के पीछे उसकी थ्योरी बोलते हैं. ओके, सो लैमार्कनिज्म का जो पर्टिकुलरली जो है उसने भी बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस किए हैं. दैट इज लैमार्क जो है वो 1744 और 1829 लैमार्क प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स एंड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस of acquired characters, and his concept are known as the Lamarckism. Means use or disuse. Every living organism tries to evolve, and during its lifetime it acquired the certain characteristics and adaptation and the modification. These characteristics are passed to the next generation. मीन्स जो कुछ अडेप्टेशन के लिए या खुद के मॉडिफिकेशन के लिए जो पर्टिकुलरली ऑर्गन्स को वो एक्टिव रखता है, और वैसे ही स्पेसीज जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में वही जो है कैरेक्टर्स पास होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटीज़ एंड लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, दिस द चेंजेस.